واہگہ بارڈر اور اٹاری پر پاکستان اور بھارت کے ایک قیدی کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے بی ایس ایف کے پورنم کمار کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ پاکستان رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو واہگہ بارڈر اور اٹاری پر پاکستان اور بھارت کے ایک قیدی کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ بی ایس ایف کے پورنم کمار کو بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا۔ ذرائع کی جانب سے مزید کیا بتایا گیا ہے، بتائیں گے در نیاب۔ جی در نیاب۔ جی بالکل، واہگہ اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے ایک قیدی کا تبادلہ کیا گیا ہے اور سیکورٹی ذرائع کے مطابق بی ایس ایف کے پورنم کمار شاہ کو بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا، جبکہ پاکستان رینجرز کے محمد اللہ کو پاکستان کے حکام کے حوالے کر دی گیا۔ سیکورٹی ذرائع نے اس قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بھی تصدیق بھی کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ در نیاب تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ آخری منٹ سٹاپ کے قریب LWMC کے ڈمپر کی رکشے کو ٹکر، 2 کمسن طالبات سمیت 5 افراد جاں بحق 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ ڈمپر کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ڈمپر کے نیچے دبے افراد کو نکالا۔ حادثے میں 3 رکشے، 2 موٹر سائیکلیں متاثر ہوئیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 10 سالہ حفظہ آئمہ شکیل اور حافظہ رابعہ شامل ہیں۔ رکشہ ڈرائیور داؤد، رکشہ ڈرائیور رفاقت بھی جان کی بازی ہار گئے۔ زخمیوں میں بلال آصف، خان محمد، عرفان، کومل اور علی حمزہ شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے حادثے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جائے وقوع سے عابد چودھری اور رمیو ہسپتال سے ہمارے ساتھ ہیں طلحہ اشرف۔ عابد چودھری سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پر کیسے یہ حادثہ پیش آیا اور کیا کارروائی کی گئی پولیس کی جانب سے، ان سے جانیں گے۔ جی عابد۔ بالکل، یہ افسوسناک واقعہ بغبان پورہ کا علاقہ آخری منٹ سٹاپ ہے، جہاں پر ایک تیز رفتار ڈمپر جو ہے وہ بے قابو ہو کر پہلے رکشہ سے ٹکرایا اور اس کے بعد انہی رکشوں کے اوپر الٹ گیا۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے، جس میں پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 رکشہ ڈرائیور شامل ہیں۔ ریسکیو کی جانب سے امدادی کارروائی کرتے ہوئے جو زخمی تھے ان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، البتہ جاں بحق ہونے والے جو لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے سی ڈی او سمیت دیگر افسران جہاں موقع پر پہنچے، جن کی جانب سے جو موقع سے تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد پولیس نے جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی۔ البتہ ابتدائی تحقیقات کے دوران سامنے آیا کہ ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت علاقہ مکین یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ واقعہ آپ کب اور کیسے پیش آیا ہے۔ آپ بتائیے گا کیا ہوا یہاں پر؟ یہ جناب صبح 7 بجے کا واقعہ، تقریباً یہ شالمار کی طرف سے ٹرک آ رہا تھا اور اتنی سپیڈ میں تھا، کنٹرول سے باہر ہوا۔ جب ون وے کیا تو آگے 2 رکشے تھے، ان کے نیچے آئے موٹر سائیکل والے، ایک آٹو رکشہ تھا وہ ان کے نیچے آیا۔ ان بچے فل سے اسکول کے لیے جا رہے تھے، وہ بچوں کی ڈیڈ باڈی ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں کہاں سے اٹھایا انہوں نے باڈی، تو آپ کو رکشے کی باڈی کے سے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ٹرک گن سے بھرا ہوا تھا، تو اب وہ کہہ رہے میں اس کی بریک فیل ہو گئی تھی۔ جب بریک فیل ہو گئی تھی اس کو پیچھے سے دیکھنا چاہیے تھا جب لوڈ کر کے آئے تھے۔ پہلے بھی بتا رہے جو علاقہ مکین ہے کہ ایسے سپیڈ میں جو ہے وہ ڈمپر ڈرائیور ڈمپر ڈرائیور یہ ایسے گزرتے ہیں، یہاں سے نہیں کہیں سے بھی جاتے ہیں، یہ ایسے ہی گزرتے ہیں، کیونکہ موضوع کی طرف سے جاتے ہیں گند اٹھانے کے لیے، ادھر گند پھینکنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا ایسے کنٹرول نہیں ہوتا۔ وارڈن جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں، یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں؟ ادھر ٹریفک وارڈنگ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، سوائے چونک کے پر، وہ شالمار چونک سے کھڑے ہوتے ہیں بس یہاں دروازے والا میں، ادھر کوئی وارڈن نہیں کھڑا ہوتا۔ آپ بتائیں، آپ بھی موقع پر تھے، کیا دیکھا آپ نے جس دوران یہ حادثہ ہوا؟ سر جی ادھروں ٹرک آ رہا سی لوڈ ہویا، لیکن ادھروں یو ٹرن لے کے بچے سکول چھڈن جا رہے سی، میں انہوں تو پیچھے ہے گھر سا، لیکن انہوں نے بریک لائی لیکن انہوں کو بریک نہیں لگی، ادھر ٹرک الٹ گیا اور ایک رشکا نہیں 3 رشکے آٹو تھلے آیا گیا، ایک موٹر سائیکل آٹو رشکا سی، 2 فل آٹو رشکے سی، جہدے وچوں 2 تے تباہ ہو گئے، وہ لے گیا، تیسرا رشکا تہاڈے سامنے ہن لے کے گیا۔ یہ رکشہ ڈرائیور کہاں کے رہائشی تھے اور ان کے اہل خانہ کو اطلاع؟ ایک حمید پورہ قبرستان، ایک حسن آباد چونک، اے ساڈے اتنے محلے دار ہے گیا، اور میں بھی اس کو اسی سکول کو بچے اس کے اپنے تھے یا کسی کے بچوں؟ نہیں، سکول دے بچے ہور کسی دے لے کے جاندا سی، یعنی کہ حافظ پرچون والا انہاں دے بچے آ اور نال دوسری گلی دے آ، اسی بھی اسی سکول دے بچے لانے ہیں، ایتھوں اسی یو ٹرن لے کے دوسری سائڈ تے جانا سی، لیکن انہوں نے بریک لائی، موقع تے آن کے کٹتے لگے بریک لائی، وہ بریک نہیں لگی اور ٹرک الٹ گیا، اور پیچھے 2 موٹر بائک والے بھی تھلے آئے ہیں فیملی دے نال اور 3 رشکے والے بھی۔
बिल्कुल ये इलाका मकीन थी जिनकी आपने गुफ्तगू जानी, जिनका कहना है कि तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा रूनमा हुआ। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि सुबह 7 बजे के करीब ये ट्रैफिक हादसा हुआ, लेकिन 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद जो जैब को है उसको क्लियर नहीं किया गया, जिसके बाद जीडी रोड पर इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम भरम है। इस वक्त पुलिस मौका पर मौजूद है, जिनकी जानिब से पहले जो डंपर था उसको खाली करवाया गया, लेकिन तहाल उस डंपर को यहाँ से रिमूव नहीं किया गया। अलबत्ता क्रेन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसकी मदद से रिक्शे जो हैं जो इस हादसे में मुतासर हुए थे उनको इस वक्त क्रेन की मदद से ट्रक में डाल दिया गया, जिनको यहाँ से अस्पताल जो थाने हैं वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। और दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि जिस दौरान हादसा रूनमा था उसके बाद डंपर ड्राइवर जो है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। जी आबिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ तलहा अशरफ भी हैं जो इस वक्त मेयो अस्पताल में मौजूद है। जख्मियों की हालत कैसी है और डॉक्टर्स का क्या कहना है, तलहा अशरफ बताएंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेयो अस्पताल के जो मुद्दा खाना है वहाँ पर मौजूद हूँ, जबकि जो सुबह का वाक़या पेश आया है जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 4 ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं, अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। और जो 5 लाशें थी उन्हें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। अगर मैं बताऊँ तो जो 5 लोग जो जाँ बहक हुए हैं उनमें 2 बच्चे जिसका नाम उम्मे शकील और एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल बताई जा रही है, हाफजा के नाम से उसका नाम है, जबकि दाऊद जो कि 40 साल आदमी था, उसके बाद रफ़ाकत भी जो कि इस हादसे की जद में आकर जाँ बहक हुए हैं और उनकी लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल किया गया है। और अगर जो ज़ख्मी हालत में मौजूद अफराद की बात करें तो वो भी इस वक्त ज़ख्मी हालत में मौजूद हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से उन पर जो कि उनके जो इलाज मुआलजा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उनमें से तमाम लोगों की जान बचाई जा सके। अगर मैं मुर्दा खाने मुंतकिल की जाने वाली लाशों के बारे में बताऊं तो यहाँ पर उनके लाहिकीन भी मौजूद हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हादसात रूनुमा हुए हैं उसको देखा जाए ताकि जो आगे आने वाले जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। और यहाँ पर जो 5 लाशें मुंतकिल कर दी गई हैं, लाहिकीन भी मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से जो ज़रूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। जी, शहर की पुरानी और टूटी फूटी शाहराहों की बहाली का बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है। LDA का छोटी बड़ी शाहराहों को असर-ए-नौ बहाल करने का मंसूबा तैयार किया गया है। अहम शाहराहों की बहाली और पैच वर्किंग के लिए 10 अरब मांगे गए हैं। इंजीनियरिंग विंग की जानिब से शाहराहों की बहाली का प्लान DG LDA को पेश कर दिया गया। LDA आइंदा माली साल में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत फंड मुख्तस करेगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर की वो शाहराहें जो A, B या C कैटेगरी में है और मॉडल हैं, उन सब की बहाली का फैसला किया गया और LDA ने इस हवाले से एक स्कीम तैयार की है जिसमें 10 अरब से अज़-ए-सर-नौ बहाली इन सड़कों की जाएगी। और लाहौर शहर में बिला तफरीक जो है वो रिहेबिलिटेशन होगी। अगर कोई सड़क का असफाल्ट होने वाला है वो नए सिरे से असफाल्ट किया जाएगा, कहीं पे पैचेस लगने वाले हैं तो पैच लगाए जाएंगे। और इसमें वो पैच नहीं होंगे जो लगेंगे कि हाथों से लगे हैं, इसमें प्रॉपर एक मशीन के ज़रिए, असफाल्ट मशीन के ज़रिए पैच लगा के इसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और 10 अरब से ना सिर्फ इन शाहराहों की बहाली होगी बल्कि लाहौर शहर की जो ट्रैफिक है जो इस वक्त परेशानी का शिकार है उसको भी स्मूथ जो रोड पे चलने का मौका मिलेगा। जीडी विंग का कहना है कि तमाम सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है, कैटेगरीज रोड की तकसीम की जा चुकी है, एरियाज डिफाइन हो चुके हैं और जैसे ही पैसे हुकूमत पंजाब देगी तो हम इस पर काम शुरू कर देंगे। 2 से 3 माह के अंदर लाहौर शहर की सड़कें जो हैं वो लश पश कर दी जाएंगी। जी, लेस्को का कवानीन के बरअक्स करोड़ों रुपए के गलत बिल चार्ज करने का एतराफ़। कंपनी का 48 लाख यूनिट्स के बिल्स गलत चार्ज करने का एतराफ़ नेपरा में रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। 2885 सार्फिन को मीटर रफ्तार कम होने पर सर्विसेज कम कर दी गई हैं। नेपरा ने करोड़ों रुपए के गलत बिल्स चार्ज करने पर लेस्को को शोकोस नोटिस भी जारी किया था। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन को गलत बिल चार्ज करने का एतराफ़ कर लिया गया है और नेपरा में जो रिपोर्ट सबमिट करवाई है उसमें इस बात की निशानदेही की गई है कि 48 लाख यूनिट्स गलत चार्ज किए गए थे और ये मजमूई तौर पर 2885 सार्फिन थे जिनसे गलत बिल चार्ज करके इजाफी वसूलियाँ की गई। नेपरा ने लेस्को को शोकाज नोटिस जारी किया था और उसमें यह कहा था कि मीटर स्लोनस की बुनियाद पर कस्टमर सर्विस
सर्विसेज मैनुअल के अगेंस्ट सार्फिन को बिल्स अरसाल किए गए और 2 माह से ज़ायद तक उनसे इजाफी बिल्स वसूल किए गए, जिसके बाद लेस्को ने अब अपना जवाब सबमिट करवाया है और यह कहा है कि मजमूई तौर पर 48 लाख यूनिट्स गलत चार्ज किए गए थे और नेपरा कवानीन के 12 सार्फिन से इजाफी बिल्स वसूल किए थे, जिसके बाद अब तमाम सार्फिन को क्रेडिट और रिलीफ देने का सिलसिला शुरू किया गया है और 2 माह के दौरान ये रिलीफ दे दिया जाएगा। तो नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर लेस्को की जानिब से गलत बिल चार्ज करने का एतराफ़ी बयान सामने आने के बाद केस को बंद कर दिया है और ये कहा है कि वो सार्फिन जिनको गलत डिटेक्शन बिल्स मीटर स्लोनेस की बुनियाद पर 2 बिलिंग साइकिल से ज़ायद तक चार्ज किए गए थे वो वापस लिए जाएं और क्रेडिट की सूरत में सार्फिन को बिलों में रिलीफ दिया जाए। तो लेस्को ने भी यही जवाब सबमिट करवाया है कि अब सार्फिन को 2 बिलिंग साइकिल की सूरत में रिलीफ दिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद से प्राप्त। रवा माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स में नाकिस कारकर्दगी सामने आई है। महकमा एक्साइज के 56 अरब 95 करोड़ रुपए के टारगेट का हसूल मुश्किल हो गया। पहले 10 माह में 40 अरब से ज़ायद वसूल करके 81% हदफ हासिल कर लिया, महकमा एक्साइज का ये बताना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ अली साही हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज में प्रॉपर्टी टैक्स की नाकिस कारकर्दगी की वजह से रवा माली साल में जो एक्साइज को हुकूमत की जानब से हदफ दिया गया है उसका हसूल नामुमकिन नज़र आ रहा है। महकमा एक्साइज को रवा माली साल में हुकूमत की जानब से 56 अरब 95 करोड़ का टारगेट दिया गया था, जिसमें अभी तक 81% टारगेट यानी 46.25 अरब रुपए का टैक्स वसूल किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स में हुकूमत की जानब से 28.25 अरब का हदफ दिया गया था, जिसमें सिर्फ 17 अरब 87 करोड़ इकट्ठे किए जा चुके हैं, जबकि मोटर ब्रांच में कारकर्दगी बेहतरीन रही। ख़ुसूसन लाहौर मोटर ब्रांच ने भी 110% से ज़ायद का टारगेट हासिल किया और टोटल पंजाब भर में 8% इजाफी टैक्स हासिल किया है। एक्साइज ड्यूटी में 2.5 अरब में से वसूल करके 67% वसूली की है। प्रोफेशनल टैक्स में 1 अरब 16 करोड़ रुपए करके 70% वसूली की गई है। लग्जरी टैक्स में 74%, रोड अबटिंग टैक्स में 57% जो रिकवरी की गई है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि चूँकि इस माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का तरीक़ाकार तब्दील किया गया है और इसको DC रेट पर मुंतकिल किया गया है, जिसकी वजह से टारगेट का हसूल जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। इसको रिवाइज़ करने के लिए हुकूमत से इल्तिजा की जाएगी। अगर हुकूमत की जानब से इसको रिवाइज़ किया तो महकमा एक्साइज अपना टारगेट हासिल कर लेगा, लेकिन अगर टोटल देखा जाए और ओवरऑल देखा जाए तो गुज़श्ता माली साल की निस्बत 14 अरब इजाफी इकट्ठे करके 28% गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा वसूली की गई। 434 सरकारी स्कूल्स में दर्जा चहारम के मेरिट के खिलाफ भर्तियों का ये मामला है। 2 साल गुजर जाने के बावजूद ताहाल एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सकी है। दर्जा चहारम की भर्तियां मेरिट पर की गई या नहीं, इंक्वायरी के लिए 2 मज़ीद कमेटियां बना दी गई। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनैद रियाज। जी जुनैद, बताइएगा। लाहौर भर के 434 सरकारी स्कूलों में जो दर्जा चहारम की भर्तियां की गई थी 2022 और 23 में 2 साल गुजरने के बावजूद जो है इन मुलाजमीन की भर्तियों की इंक्वायरी नहीं हो सकी, क्योंकि ये मेरिट के ख़िलाफ़ भर्तियां होने का इंकशाफ हुआ था, जिस पर इनकी तनख्वाहें जो हैं वो रोक दी गई थी और गुज़िश्ता 6 माह से इन दर्जा चहारम के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। और इस हवाले से जिन मुलाजमीन ने हाई कोर्ट से रिज्यू किया था उनका केस जो है वो हाई कोर्ट ने सुना, जिसके बाद 99 मुलाजमीन को फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इससे कबल जो इंक्वायरी की गई थी उसमें 127 मुलाजमीन मेरिट पर, जबकि 194 मुलाजमीन मेरिट के खिलाफ भर्ती किए जाने का इंकशाफ हुआ था, जिसके ऊपर ये तनख्वाहें रोक दी गई थी। लेकिन अब जो है हाई कोर्ट ने 99 मुलाजमीन को तनख्वाहें जारी करने का हुक्म दे दिया, जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने एक बार फिर जो है 2 कमेटियां जो हैं वो तश्कील दे दी हैं, जो फैसला करेंगी कि ये मुलाजमीन मेरिट पर भर्ती हुए हैं या नहीं हुए। इस हवाले से अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सकी, हालांकि 2 साल गुजर चुके हैं। इस हवाले से मुलाजमीन भी लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में अकोमोडेट किया जाएगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे स्लैब पीरियड की वजह से मुसाफिरों की तादाद है वो कम होने की वजह से जो ट्रेन शेड्यूल है वो रमज़ान की बुनियाद पर है वो तब्दील हो रहा है। और आज भी लाहौर से कराची जाने वाली 2 ट्रेनें हैं वो मंसूख की गई हैं, जिनमें बिजनेस एक्सप्रेस
और शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिर हैं तो उनको दीगर ट्रेनों में वो अकोमोडेट किया जाएगा। बिजनेस एक्सप्रेस के मुसाफिर को आज कराची एक्सप्रेस में है वो एडजस्ट किया जाएगा, जबकि कराची एक्सप्रेस है वो लाहौर से कराची के लिए अपने मुकर्ररा वक्त 6 बजे है वो रवाना होगी रात शाम को। क्योंकि शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिर को जो है वो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के अंदर है वो एडजस्ट है वो किया जाएगा और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो है वो कराची के लिए अपना मुकर्ररा वक्त रात 8:50 पर लाहौर से है वो रवाना होगी। तो सर का ये कहना है कि रेलवे के इस वक्त जो सिलेक्ट पीरियड है वो चल रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिर तादाद है वो बहुत कम है और रेलवे हकाम जो है रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनें हैं वो मनसूख कर रहे हैं ताकि अजाफी खर्च और अजाफी बोझ से वो बचा जा सके और ट्रेनों को मंसूरी के बाद जो मुसाफिर को जो है वो दीगर ट्रेनों में एडजस्ट कर लाहौर से कराची, कराची से लाहौर के मोबाइल सफर है वो करवाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी शदीद माली बहरान का शिकार है। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की जानिब से पार्टी फंड न देने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद डिटेल्स बताएंगे राउदुलशाद हुसैन। जी राउदुलशाद। पंजाब असम्बली में मौजूद मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी शदीद माली बहरान का शिकार है। माली बहरान का शिकार होने की बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के 206 बुनियादी तौर पर अरकान असम्बली हैं पंजाब असम्बली में, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा रुकन असम्बली नहीं जो कि गुज़श्ता 6 माह में मुकम्मल तौर पर जिसने पार्टी का फ़ंड जमा करवाया हो। पार्टी फ़ंड्स जमा ना करवाने वाले अरकान की तादाद 173 है, जबकि मजमूई तौर पर 206 में से जो है वो मुकम्मल तौर पर किसी ने भी ताहाल पार्टी फ़ंड्स जमा नहीं करवाए। आपको बताएं कि पार्लिमानी पार्टी की जानिब से ये तय किया गया है कि हर रुकन असम्बली, ख़ास तौर पर जब से तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है, हर रुकन असम्बली पाबंद है 20,000 रुपये पार्टी फ़ंड के लिए जमा करवाएगा। ताहम दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त आई जब 5 अरकान असम्बली ने फार्म पर दस्तखत तो किए तनख्वाह कटौती के लिए, लेकिन उनके जो दस्तखत हैं वो मैच नहीं किए उनके ओरिजिनल जो अकाउंट है उसके साथ, जो कि नेशनल बैंक पंजाब असम्बली में मौजूद है, उसके साथ ही मैच नहीं किए। तो इसी तरह से मजमूई तौर पर चूँकि 206 बड़े बड़े वज़रा, बड़े बड़े नाम, लेकिन जो अदायगी है 20,000 रुपये माहाना की जो कि पार्टी फ़ंड के देने के पाबंद हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, वो नहीं दी जा रही, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है वो ना सिर्फ माली बहरान का शिकार है बल्कि जो रिफ़्रेशमेंट का बजट करने के लिए उसको रकम उधार पर लेना पड़ रही है। राहुल अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 साल से गैर फ़ाल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गैर मौजूदगी से पार्किंग कंपनी के मामलात ठप होकर रह गए। अहम तैनातियों, पार्किंग प्लाजों, आमदन के हवाले से अहम फैसले इल्तवा का शिकार हैं। BOD की गैर मौजूदगी में HR कमेटी भी कायम नहीं की जा सकी। HR कमेटी ना बने से अहम अहदों पर तैनाती इल्तवा का शिकार है। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर खान, हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर खान। जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग कंपनी जिसे ली पार्क भी कहा जाता है, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गुज़िश्ता 3 साल से गैर फाल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना होने की वजह से, गैर फाल होने की वजह से कंपनी के जो अहम मामलात हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, जिनमें आमदन के मामलात हैं, कंपनी के इंतज़ामी अमूर है, पार्किंग प्लाजों की तामीर है और कुछ अहम तैनातियाँ भी हैं। तैनातियाँ HR कमेटी ने करनी होती है, लेकिन HR कमेटी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना होने की वजह से गैर फाल है, जिसकी वजह से अहम ओहदा सीनियर इंटरनल ऑडिटर जो है वो खाली है। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरी का ओहदा एडिशनल चार्ज के साथ चलाया जा रहा है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो भी एडिशनल चार्ज के साथ चलाया जा रहा है। 2 मैनेजर और 3 असिस्टेंट मैनेजर जो हैं वो भी एडिशनल चार्ज के साथ उनके मामलात भी चलाए जा रहे हैं। इसी तरह शहर के अंदर पार्किंग प्लाजों के जो अहम मामलात हैं वो भी इल्तवा का शिकार है। इसी तरह कंपनी के अपने आमदन के वसाइल बढ़ाने के वाले से कुछ तजावीज़ हैं कंपनी के पास, लेकिन इसकी मंजूरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देनी होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना होने की वजह से कंपनी के आमदन के जो मामलात हैं वो भी ठप हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर पार्किंग कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ये 11 अरकान पर मुश्तमिल होता है, जिनमें CEO लाहौर पार्किंग कंपनी के अलावा डिप्टी कमिश्नर, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर यानी CTO, इसी तरह एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात, CO MCL और 4 आज़ाद। बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज्ड आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 100 यूटिलिटी स्टोर्स में से किसी स्टोर पर भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। क्या वजूहात हैं, बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान। बिल्कुल, शहर लाहौर के यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज आटे की किल्लत का जो बहरान है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है और शहर में
100 سے زائد یوٹیلٹی سٹور ہیں مگر کسی یوٹیلٹی سٹور پر بھی سبسڈائز آٹا دستیاب نہیں ہے، اور اسی وجہ سے جو کم آمدنی والے افراد ہیں جو خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا تمام تر جو دار و مدار ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ مزدوری ملنے پر منحصر ہوتا ہے، ایسے افراد کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ افراد یوٹیلٹی سٹوروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور اس امید پر آتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹوروں پر سبسڈائز آٹا شاید آ چکا ہو، لیکن گزشتہ کئی مہینوں سے صورتحال جوں کی توں ہیں اور یہ طبقہ اب خاصی مالی مشکلات سے دوچار دکھائی دیتا ہے، کیونکہ جو روزگار کی صورتحال ہے وہ بھی کچھ تسلی بخش نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ صارفین کہتے ہیں کہ انہیں مجبوراً اوپر مارکیٹ سے مہنگے داموں والا آٹا جو ہے وہ خریدنا پڑ رہا ہے، اور ان افراد کا یہ مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت شہر کے یوٹیلٹی سٹوروں پر خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کے لیے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ صارفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت نے ان کو بے آسرا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ شہزاد تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔